हम पढ़ेंगे 1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, 2 पीटर 1 चैप्टर, एजेकियल 37 से 38 चैप्टर, 37 चैप्टर 38 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, पतरस की दूसरी पत्री, पहला अध्याय, यहजकेल की भविष्यवाणी 37 अध्याय से 38 अध्याय। हम पवित्र आत्मा आपसे विनती करते हैं कि हमारी इस बाइबल रीडिंग को आशीषित कीजिए और परमेश्वर हमें फिट एंड फिक्स कीजिए और हमें सहायता कीजिए कि आपके वचन हम समझ सके। नासरी यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। हम पहले किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, फिर बाद में हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। 2 पीटर 1 चैप्टर, पहले हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। Saluting the Christians, he admonisheth them of the gifts and promises of the gospel. He exhorted them to add to their faith such virtues as would make it fruitful. He remembered them hereof, knowing his dissolution to be near. Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord, according as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherliness, kindness, and to brotherly kindness charity. For if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. 8th वचन को ध्यान रखना। But he that lacketh these things is blind and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if ye do things, ye shall never fall. For so entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though ye know them and be established in the present truth. Yea, I think it meet, as long as I am in this tabernacle, to stir you up by putting you in remembrance, knowing that shortly I must put off this my tabernacle, even as our Lord Jesus Christ hath shewed me. Moreover, I will endeavor that ye may be able after my decease to have these things always in remembrance. For we have not followed cunningly devised fables when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitness of his majesty. For he received from God the Father honor and glory, when there came such a voice to him from the excellent glory, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. And this voice which came from heaven, and we heard when we were with him in the holy mount, we have also a more sure word of prophecy,
whereunto ye do well that ye take heed as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts, knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation, for the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake us, they were moved by the Holy Ghost. सेकेंड पीटर पतरस की दूसरी पत्री, उसका पहला अध्याय हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। पतरस की दूसरी पत्री पहला अध्याय। अभिवादन शमौन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। ईश्वरीय बुलाहट और चुनाव, 3 वचन से आगे। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। क्योंकि देखा 8 वचन क्या कहा, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। हालेलुया। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। डेंजरस जोन है। ओके, इसके लिए ध्यान रखिए 8-9 वचन। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। हालेलुया। सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते जाओ। हालेलुया। यत्न करने के लिए बुला है। आमीन। मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। सुपर, थैंक यू जीसस। 8, 9, 10 वचन मैं अपने लिए स्वीकार रही हूँ, आप लोग भी स्वीकार सकते हैं। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। पतरस का अंतिम समय। मैंने ये वचन के ऊपर गौर किया है। 8, 9, 10, 11 वचन। ओके, हम सारे वचन पे गौर किए हैं। ये वचन कुछ खास ध्यान आ रहा है मेरा उन वचनों के ऊपर। पतरस का अंतिम समय 12 वचन से आगे। इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूँगा। मैं यह अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें सुधि दिलाकर उभारता रहूँ, क्योंकि यह जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कुछ करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। हालेलुया। मसीह की महिमा के आंखों देखे गवाह। 16 वचन से आगे। जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था।
क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आते सुनी, हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में न चमक उठे। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हालेलुया। यहाँ पे आपको और हमको समझना है, परमेश्वर का वचन, मैंने हमेशा आपको बोला है, बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर का वचन हमारे लिए सिर्फ लिखी हुई किताब है। ओके, हम कुछ भी बोल सकते हैं पवित्र वचन में से निकाल कर, और उसको बड़े बड़े शब्दों के साथ हम इसका प्रचार भी कर सकते हैं, लेकिन अगर पवित्र आत्मा शामिल नहीं है इसके अंदर, अगर पवित्र आत्मा हमारी मदद नहीं कर रहा है इसके अंदर, ओके, तो वो वचन वो ज़रूर काम करेगा, क्योंकि वचन है, लेकिन उसका जो फल परमेश्वर की ओर से होना चाहिए वैसा नहीं आएगा। परमेश्वर का फल कौन सा है? पश्चाताप कैसा आना चाहिए? पश्चाताप हृदय से बपतिस्मा होना चाहिए। अगर पश्चाताप किया तो उद्धार हो जाता है ना? तो पश्चातापी हृदय आने दो और फिर बपतिस्मा लो, है ना? ऐसा दिया है। तो ये पश्चाताप लेकर आता है। पवित्र आत्मा अंधियारे को हटाता है और पश्चातापी हृदय देता है और फिर रोशनी को हम में भरता है। ये सीक्रेट है। ओके, जब हम परमेश्वर के आत्मा से उभारे जाते हैं, उभारा जाना होना चाहिए। ओके, कि हमको परमेश्वर के आत्मा ने उभारना चाहिए कि ये वचन तेरे लिए है। जैसे मैंने आपको बोला 8, 9, 10, 11 कुछ ध्यान खींच रहा है मेरा, तो उभारे जा रही हूँ मैं। समझ में आया? ये उभारा जाना आपको पवित्र आत्मा मजबूत करने का कुछ रास्ता दे रहा है। ओके, वो आपका समय के अनुसार आपको कुछ दे रहा है। हालेलुया। अगर ये उभारे जाकर कोई आपको बोलता है गॉड ब्लेस यू, तो आप ले लीजिए, क्योंकि अगर परमेश्वर का जन आपको ऐसा कहता है तो ठीक है, तो आपको ले लेना है। क्योंकि अगर कोई उभारे जाने से यीशु के वचन लेकर आपको कुछ कह रहा है, निश्चित है वो आपके अंदर कुछ ना कुछ काम निश्चित पूरा करेगा, पूरा। ओके, तो ये उभारा जाकर परमेश्वर का काम हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा उभारा जाना। ओके, पवित्र आत्मा के द्वारा उभारा जाना, फिर परमेश्वर का काम वचन में से हमारे जीवन में पूरा होता है। नहीं तो वचन हमारे लिए सिर्फ एक लिखी हुई किताब रहेगी और इसके बारे में हमको उत्साह नहीं रहेगा। ओके, अगर इस वचन के विषय में उत्साह हमको लगने लगा, अगर ये वचन हमारे जीवन में कुछ काम कर रहा है, ये हमको पता चला, तो समझ जाइए ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर फिर काम शुरू किया है। अगर ऐसा नहीं है तो आप इंतज़ार कीजिए पवित्र आत्मा, आप पढ़ते जाइए बाइबल, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप ध्यान रखिए पवित्र आत्मा आपको उभारता है, उस जगह को आप कैच कीजिए जल्दी से। ठीक है, प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद करते, हमारे प्राण को छुड़ाने वाला वचन, तेरा वचन परमेश्वर हमारे अंदर आ चुका है। शैतान के तीर हमारे प्राणों के अंदर कोई काम के लिए रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि जहाँ उजियाला रोशनी आ पहुँचती है वहाँ पे अंधेरा कुछ नहीं कर सकता। ये सच्चाई है मेरे पिता, और इस सच्चाई को हम ग्रहण करते हैं, चाहे हमें कैसा भी फील क्यों ना हो, हमें कैसा भी परमेश्वर महसूस क्यों ना हो, लेकिन अंधेरा निकल गया है क्योंकि वचन हमारे अंदर पहुंच आया है। अब फादर गॉड, हमारे सुनने में, बोलने में, हमारे चलने फिरने, उठने बैठने में वचन पहुंच चुका है। हमारे इनविजिबल और विजिबल दोनों रियाम में वचन पहुंच चुका है, और जो सोच, जो कल्पनाएं हमारा सामना कर रही है, गंदगी के जगत में से, पाप के जगत में से, अधर्म के जगत में से, जो
जो हमारा सामना कर रही है, हमारे अंदर से परमेश्वर का वचन उसका सामना करता है और उसको लज्जित करता है और हम उसको नफरत कर रहे हैं, क्योंकि उसका हमसे कोई लेन देन नहीं है, वो हमारे सामने रुकना नहीं है। आई कमांड यू फॉल डाउन एंड डाई इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम धन्यवाद करते हैं खुदा। थैंक यू जीसस क्राइस्ट की ऐसी कोई हस्ती, ऐसी कोई व्यक्ति जो अपने अंदर गंदे काम करती है और पिता परमेश्वर वो गंदे काम को लेकर वो हमको अपना दोस्त बनाकर हमको उसमें शामिल करे इनविजिबली स्पिरिचुअल रियम में, इम्पॉसिबल है, क्योंकि अंधेरा उजियाले के साथ इकट्ठा दोस्त नहीं बन सकता है। आई कमांड दैट ऑल बॉन्डेजेस ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो भी शैतान के जगत में गंदे काम करने वाले के साथ हमारा कोई भी जॉइंट किया है, कुछ भी जॉइंट किया है, कहीं पर भी हमारे फोटोग्राफ्स, कहीं पर भी कुछ भी कनेक्ट किया, आई कमांड break in the name of Jesus, get disconnected from us in the name of Jesus Christ। प्रभु यीशु तेरा आत्मा का आज आग परमेश्वर पिता उन सारे कनेक्शंस में रिलीज हो जाए। जो कोई भी गंदे असर हमारे जीवन में रिलीज करने के लिए किसी के साथ भी हमको कुछ भी कनेक्ट करने की कोशिश करेगा स्पिरिट देकर या कोई भी प्रकार से पावर्स यूज करके, तो मेरे पिता आपकी आग, पवित्र आत्मा की आग उसके ऊपर झपट जाए नासरी यीशु के नाम में, और वो भस्म हो जाए उसकी शक्तियां वही के ऊपर। खुदा परमेश्वर हम तुझसे विनती करते हैं, दुष्ट आत्माओं के काम खत्म कर हमारे सोचों में से, दुष्ट आत्माओं के काम खत्म कर हमारे मनों में से, दुष्ट आत्माओं के काम खत्म कर। तेरा वचन उजियाला है, तेरा वचन रोशनी है, तेरा वचन जीवित कर उन शक्तियों के सामने, तेरा वचन जीवित कर उन शक्तियों के सामने, उन्हें लज्जित कर दे। तेरा वचन जीवित कर हमारे अंदर से, तेरा वचन जीवित कर हमारे अंदर से। पवित्र आत्मा तेरा वचन हमारी सोचों में जीवित कर, तेरा वचन हमारी सोचों में जीवित कर, तेरा वचन हमारी सोचों में ऑक्यूपाई होने दे, तेरा वचन हमारे अंदर ऑक्यूपाई हो जाने दे, तेरा वचन हमारे अंदर ऑक्यूपाई हो जाने दे, तेरा वचन हमारे अंदर ऑक्यूपाई हो जाने दे। पवित्र आत्मा तेरा वचन हमको छुड़ाने के लिए आने दे, तेरा वचन हमको छुड़ाने के लिए आने दे। जो भी हमारे ब्रेन को, हमारे माइंड को मैनिपुलेशन में डाला है, मेरे यीशु के नाम में हमारा ब्रेन, हमारा माइंड आजाद हो जा, हमारा ब्रेन, हमारा माइंड आजाद हो जा, हमारा ब्रेन, हमारा माइंड आजाद हो जा, हमारा ब्रेन, हमारा माइंड आजाद हो जा। तूने आशा की सुनी थी और उसे सडन हेल्प भेजी थी हमारे लिए। परमेश्वर सडन हेल्प भेज खुदा, हमारी सडन सहायता कर पिता। मेरे खुदा परमेश्वर हमें आकस्मिक सहायता से भर दे खुदा। मेरे परमेश्वर तेरे राज्य की सहायता हमारे लिए छोड़ खुदा, हमारे लिए दे खुदा परमेश्वर, हमारे लिए रिलीज कर खुदा परमेश्वर। तेरे स्वर्ग की सहायता हमारे लिए रिलीज कर। शत्रु जो कुछ खेल तमाशा हमारे मन के साथ कर रहा है, जो खेल तमाशा हमारे बुद्धि के साथ कर रहा है, जो खेल तमाशा हमारे कॉन्शियसनेस के साथ कर रहा है, उसके ऊपर परमेश्वर तेरे स्वर्ग की सेना रिलीज कर। उसके चंगुल में से हमारे ब्रेन को छुड़ा खुदा, हमारे माइंड को छुड़ा खुदा, हमारी सोचों को छुड़ा खुदा, हमारी युक्तियों को छुड़ा खुदा, हमारे कॉन्शियस अनकॉन्शियस को छुड़ा खुदा, हमारे सबकॉन्शियस को छुड़ा खुदा, हमारे इमेजिनेशंस को छुड़ा खुदा। छुड़ा हमको, छुड़ा यीशु, यीशु के नाम में हमको छुड़ा खुदा, हमको छुड़ा खुदा, हमको छुड़ा खुदा। आशा की तूने सुनी है, हमारी सुन खुदा। आशा को तूने सहायता किया, हमें सहायता कर खुदा। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, हमारी मदद कर, हमारी मदद कर परमेश्वर। शत्रु के चंगुल में से, उसके चपेट में से हमारी चीजें निकाल ले खुदा, उसके चपेट में से, उसके सोचों में से हमको निकाल ले खुदा, उसके मन में से हमको निकाल ले खुदा, उसके जहन में से हमको निकाल ले खुदा, उसके बॉडी के पार्ट में से हमको निकाल दे खुदा, निकाल दे, उसके अंदर से हमको निकाल दे खुदा, निकाल दे, निकाल दे, निकाल दे, निकाल दे, निकाल दे खुदा। वो सारे सब कुछ जिसके अंदर उसने हमको बंद करके रखा है, फोड़ दे यीशु के नाम में, फट जाए यीशु के नाम में, फट जाए यीशु के नाम से। मेरे खुदा यीशु के नाम में हम ब्रेक ऑफ हो जाते हैं उन सारी शक्तियों में से जो हमारे साथ कनेक्टेड है। नासरी यीशु के नाम में शैतान के जगत से कनेक्टेड हर शक्तियों में से हम ब्रेक ऑफ हो जाते हैं, हम ब्रेक ऑफ हो जाते हैं, हम ब्रेक ऑफ हो जाते हैं, हम ब्रेक ऑफ हो जाते हैं नासरी यीशु के नाम में।
थैंक यू जीसस। मेरे खुदा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर छुटकारा कायम कर, हमारा छुटकारा निश्चित कर, परमानेंट कर, हमारा छुटकारा निश्चित कर, परमानेंट कर, और हमें आजाद कर खुदा, हमें आजाद कर खुदा, हमें आजाद कर खुदा, हमें आजाद कर यीशु, हमें आजाद कर अब्बा फादर गॉड। हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, हम तेरी आजादी को स्वीकारते हैं खुदा। हम निश्चित जानते हैं खुदा दुष्ट का अंत हो चुका है खुदा, हम निश्चित जानते हैं दुष्ट का अंत हो चुका है, हम निश्चित जानते हैं दुष्ट का अंत हो चुका है खुदा। ये समस्या खत्म हो चुकी है, ये सारे समस्याएं खत्म हो चुकी है, सारी बलाएं खत्म हो चुकी है, सारी पीड़ाएं खत्म हो चुकी है, सारी यातनाएं खत्म हो चुकी है। हम आजाद हो चुके हैं, 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 हम परमेश्वर के बुलाहट में चलने के लिए आजाद हो चुके हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरे महिमा के काम हमारे जीवन में पूरे कर खुदा, तेरे महिमा के काम हमारे जीवन में पूरे कर परमेश्वर, तेरे महिमा के काम हमारे अंदर दिखने दे खुदा, तेरे महिमा के काम हमारे अंदर असर करने दे खुदा, हमारे अंदर तेरा असर बढ़ता जाए परमेश्वर, तेरा असर, तेरा अनुभव हम में बढ़ता जाए परमेश्वर, तेरा असर, तेरा अनुभव हमें आनंदित करने दे खुदा। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू आबा, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शबियान तुखंबा असेल रबहा अखासियान तुखंबा हस्सा जुदेल लल्लाहा असीस खिल बुरा जदील लल्लाहा अतातकिन बिरहा लात उल रहा असेस खिल बरा दातकिन बिरहो उजाज खिल बरा बर्रा खातीन रबहा अखतकिन बरहो जिदेन किन बिरहा अदान किन बिरहो बहत बहत तालहा असेसील रबहा बहत बहत बहल रहा असास किल बरो दहद इल रबहा अदीत किल बिरहा ब्लाह कसियातू न रहा अतीत किन बिरहा लरबहा बहत किन बर रखा तीन रबहा अखासियातू न रहा दहदील रबहा असासील रबहा दहत इल रबहा अखासियां तुखम आसेल रबहांसरा। तूने कहा 8 वचन में खुदा, फॉर इफ दीज थिंग्स बी इन यू and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. ये वचन मैं स्वीकारती हूँ खुदा। For if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. In the precious name of Jesus Christ I pray. Amen, amen, amen.